right? So the chapter is chapter number 6, soil. Now, if you see the topic soil, what it says, soil is a mixture of rock debris and organic material which develop on the earth's surface. The major factors affecting soil formation are, what are those factors? It says those factors are relief, parent material, climate, vegetation, and other features. So the most important thing is these five factors: relief, parent material, climate, vegetation, and other forms. Right? So now these forms we will be discussing later. So then it says that if you go and start digging the soil, you will find that soil has got different layers. Okay, what has it got? Different layers. Now there are horizons. One is A horizon. A horizon is where organic matters are incorporated in the soil and there are nutrients and which are necessary for plant growth. B horizon, if you see, is a zone which is totally different from A horizon and it is between the A and the C horizons. There are three horizons, right? And the name of horizons are A, B, and C. Good. And in this C horizon, what you find, uh, you will notice it says this is composed of loose parent material. To make the things easy, let us look at, you can see the three horizons, A horizon, B horizon, and C horizon. And you can see one more horizon as you go deeper in soil studies, you find another horizon also. Here you can understand the first horizon is made up of fragmented rocks, or the A horizon is made up of the fragmented rock and all the things that are existing in the nature above, they are become a part of the A horizon. B horizon has got broken rocks, and you can see here the roots of the trees are also there. And the C horizon is hard rock that exists. So you have understood the concept of horizons. And back to the book, you can see it says there are three horizons, and you find that uh, C horizon, if you see, it says is composed of loose parent material, right? So there are three horizons A, B, and C. Now we come to the ancient classification of soils. Now, if you come to the ancient classification of soils, you will find that there are uh, different types of names given to soil. One name is Urvara. Urvara means fertile soil, and then comes the Usar, which is not so fertile or sterile soil. So there are two types of soil on the basis of ancient terminology, and they are Urvara and Usara. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि on the basis of color, the soil is red soil, yellow soil, and black soil. तो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, ये सब हम देखते हैं, हमारे को आती भी है, वी विल डू दैट। और आगे हम क्या देखते हैं, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1956 मेड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ दामोदर वैली एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ soil survey in India uses planning and institute under the control of Indian Council of Agricultural Research did a lot of studies on soil, on Indian soil. तो हम देखते हैं कि इंडिया की सॉइल को कौन स्टडी करता है, क्वेश्चन अगर आता है तो आंसर आता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और यूनाइटेड स्टेट्स में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसका नाम है USDA। तो USDA के हिसाब से, और जो है वो USA की स्टडी करती है, और उनकी जो वो करा है, ICAR has classified soil of India into the following taxonomy as per USADA soil taxonomy। तो एक तो हम ऑर्डिनरी सॉइल का जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पेज पे देख रहे हैं। तो हमारे को दिख रहा है अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सेलाइन सॉइल, बीटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो जो ये जो है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ
genesis, color, composition and location, soil of India can be classified into। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आंसर देना होगा और इसके करेक्टर्स आएंगे। अगर क्वेश्चन आए कि यूएसए की सॉइल, यूएसए की जो सॉइल डिपार्टमेंट है वो कैसे सॉइल को स्टडी करती है, तो वो स्टडी करती है सॉइल को एक अलग तरीके से। एरिड सॉइल को कहती है एरिडोसोल, ठीक है। और उसने अलग अलग उसने नाम बना रखे हैं, उसके क्राइटेरियाज हमने नहीं स्टडी करे हैं अभी, और ना ही हमारे कोर्स में। तो वी विल नॉट बी आस्किंग यू क्वेश्चन ऑन इंसेप्टिसोल्स on this particular topic about inseptisols, एलिसोल्स, वर्टिसोल्स, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड योर कोर्स। ठीक है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन उसने दे रखा है। वी विल नॉट आस्क यू योर क्वेश्चन ऑन दैट, बट वी विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चन ऑन अलूवियल सॉइल। तो अलूवियल सॉइल को अगर हम देखें तो अलूवियल सॉइल इज प्रेजेंट इन द नदर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड कि ये वाला जो एरिया है, इफ आई सी दैट, ये पर्टिकुलर एरिया यू कैन सी इन द मैप, ये सारा अलूवियल सॉइल का एरिया। ना यहाँ पर भी अलूवियल सॉइल है, ये अलूवियल सॉइल ये जा रही यहाँ तक ही, ये गुजरात में भी है अलूवियल सॉइल। एंड यहाँ कोस्टल एरियाज में जहाँ पर रिवर्स आती हैं वहां पर भी अलूवियल सॉइल है। तो अलूवियल सॉइल और रिवर का कोरिलेशन है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहां पर रिवर्स हैं, रिवर वैलीज जहाँ पर है वहां पर भी वो पाई जाती है। और क्या देखते हैं, 40% ऑफ द कंट्री जो है ये सॉइल पाई जाती है। फिर वो कहते हैं ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब वो अपनी जगह से ट्रांसपोर्ट की गई है, ठीक है। और अपनी जगह से वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, वो रिवर उसको अपनी जगह से ट्रांसपोर्ट करती है। उसके दो टाइप्स हैं, एक है खादर और दूसरा है पांगर। खादर मतलब खाद और बांगर मतलब बंजर। तो दो टाइप्स हैं। खादर को अगर हम स्टडी करें तो इट सेज कि खादर इज न्यू एल्यूवियम, और ये जो होती है यंगर इन एज होती है, ठीक है। खादर इज यंगर इन एज, ठीक है। एंड भांगर मतलब बंजर, और भांगर जो है वो नॉट सो फर्टाइल होती है, ठीक है। और ये जो होती है ये डार्कर इन कलर होती है और ओल्डर इन एज होती है, बांगर, ठीक है। और बांगर जो वर्ड है वो आता है बंजर वर्ड से। तो हमारे को सॉइल के दो करेक्टर्स पता लगे। एक तो आया कि एलुवियल सॉइल जो है वो नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है। पहला करेक्टर आप यहाँ मार्क कर लीजिए अलग से कि ये नदर्न प्लेन्स में पाई जा रही है। दूसरा करेक्टर आप मार्क करिए कि 40% ऑफ द कंट्री सॉइल जो है वो अलुवियल सॉइल है। फिर ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ठीक है ना। उसके बाद इसके दो टाइप्स हैं, खादर एंड बांगर। फर्टाइल ज्यादा खादर है, और बंजर जो है वो फर्टाइल नहीं है। तो बांगर वर्ड बंजर वर्ड से आ रहा है। और इसके अंदर क्या होता है, जो बांगर सॉइल होती है उसके अंदर कंकड़ होते हैं। कंकड़ क्या होते हैं, वो पत्थर होते हैं जो सॉइल को बिल्कुल अ, बेकार कर देते हैं, उसके करेक्टर को स्पॉइल कर देते हैं। क्यों? और ये कंकड़ बनते कैसे हैं कि जो भी केमिकल्स ऊपर उठते हैं पानी के साथ वो वहां पर रह जाते हैं और वो कंकड़ को बना देते हैं। So with this we have concluded the alluvial soil. ब्लैक सॉइल अगर हम देखें, सो वी फाइंड दैट ब्लैक सॉइल, एक तो उसने लोकेशन बताई, वो सारे डेक्कन प्लेटो में पाई जा रही है। ये देखिए सारा एरिया, ये आपका कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात है, कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है ना। नीचे तमिलनाडु की तरफ भी आती है, मतलब बिल्कुल मिनिमम। ज्यादातर तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, और आपके अ, मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। ये आप सेफली लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या देखें कि लोकेशन ऑफ सॉइल्स को याद करना बहुत आसान तरीका है। अगर आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया याद है तो आप जब भी इस फिगर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सी सॉइल है। मगर आपको पॉलिटिकल मैप नहीं याद है तो आपको लोकेशन नहीं आएगी, और लोकेशन नहीं आएगी तो ज्योग्राफी आपको इंटरेस्टिंग कभी नहीं लगेगी। हम्म। तो फर्दर हम क्या देखते हैं कि ब्लैक सॉइल के क्या करेक्टर हैं। तो ब्लैक सॉइल हमने देखा कि ये जो है ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बनी है, ठीक है। पहला करेक्टर आप लिख लीजिए कि ये वॉल्केनिक ओरिजिन से है। इसका जो नाम है
अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम रहे हैं। एक जगह एक तो इसे ब्लैक सॉइल ही कहते हैं, दूसरा इसे रेगर सॉइल भी कहते हैं। और इसके अंदर एक सेल्फ फ्लोइंग करेक्टर है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि सेल्फ फ्लोइंग करेक्टर का मतलब क्या है। सेल्फ फ्लोइंग करेक्टर का मतलब है कि जो सॉइल है वो अपने आप ही क्या होती है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो सॉइल जो है ना वो क्रैक खा जाती है, और वो अ, ऐसी हो जाती है जैसे यहाँ पर दिख रही है। तो ये जैसे फट गई है सॉइल, यहाँ पर आप देख रहे हैं हर जगह से। तो उस तरीके से पानी जो है इसके अंदर आराम से नीचे तक जा सकता है, एयर भी इसके अंदर जा सकती है। वैसे तो पानी इसमें उस समय होता ही नहीं, तभी ये ऐसी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर, soil absorption and loss of moisture, this because of this character, soil absorption and loss of moisture, the black soil retains the moisture for a very long time and helps crops to grow, especially the rain fed ones, to sustain even during dry season. तो एडवांटेज यहाँ की क्या है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ की जो सॉइल है वो मॉइस्चर को अपने में से निकलने नहीं देती। तो इसीलिए यहाँ पर कॉटन जैसा क्रॉप उगाया जाता है। अगर आप कॉटन देखो, शुरू में तो उसे पानी चाहिए, मगर बाद में उसको बिल्कुल सूखा चाहिए। तो पानी रिटेंशन की कैपेसिटी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और क्या हम देखते हैं कि ब्लैक सॉइल में लाइमस्टोन, आयरन और सॉरी आयरन एंड मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है। तो ये इसके करेक्टर्स हो गए सॉइल के। और ये लैक करती है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है। तो एक बार फिर से इसके करेक्टर देख लेते हैं। ब्लैक सॉइल ब्लैक इन कलर होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहलाती है ना। और इसके अंदर जो प्लोइंग होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है जब तक रेनफॉल ना हो। तो फर्स्ट रेन के बाद ही इसको प्लो किया जाता है। ठीक है। और क्या होता है कि जब पानी की कमी होती है तो ये सॉइल फटने लगती है और मॉइस्चर को निकलने नहीं देती। मगर जब ये फटती है सॉइल तो उसके अंदर एयर घुस जाती है। और एयर के घुसने का जो करेक्टर है वो उसको सेल्फ फ्लोइंग। जैसे हम सॉइल में जब ब्लो यूज करते हैं तो सॉइल ऊपर नीचे हो जाती है, तो टूट जाती है सॉइल। तो उसी तरीके से ये अपने आप ही पानी की कमी से टूट जाती है। तो इसको कहते हैं सॉल सेल्फ फ्लोइंग करेक्टर ऑफ द ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। चाहे यहाँ पर पानी उतना ना हो, मगर बिना पानी के भी ये बहुत ज्यादा फर्टाइल रहती है। तो इसमें ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वोल्केनिक ओरिजिन की सॉइल है, जिसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। तो विद दिस द ब्लैक सॉइल इज डन। So red soil develops on crystalline igneous rocks. So one character of this soil is that it develops on it's red in color, and the second character of red soil is that it develops on crystalline igneous rocks, right? So you have already studied the three types of rocks you already know in the past also. Okay, igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rock. तो ये फर्स्ट फॉर्म वॉल्केनिक ओरिजिन की जो रॉक्स हैं उनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो ये इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, जिसमें ये बनती हैं। फिर उसने उसकी लोकेशन बताई। द soil develops a reddish color due to diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. तो रेड सॉइल रेड इन कलर क्यों होती है? क्योंकि उसका जो होता है रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो आयरन और कंटेंट जो है जब वो रेडिश क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो रिएक्ट कर जाता है एयर से और जंक बनने लगता है। ठीक है। और वही सॉइल अगर उसमें रिएक्शन विद हाइड्रोजन हो तो हाइड्रेट्स फॉर्म हो जाते हैं, और ऐसी जो सॉइल है वो येलो इन कलर हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए कि दो अलग अलग टाइप की सॉइल दिखा रहे हैं। एक ऊपर रेड सॉइल और नीचे दिखा रहे हैं येलो सॉइल। येलो सॉइल में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि येलो सॉइल में रिएक्शन विद हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रेट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो येलो इन कलर हो रही है। तो प्रोसेस इन्वॉल्व दोनों सॉइल्स में डिफरेंट है। ठीक है। रेड आयरन ऑक्साइड है ना, आयरन से रिएक्शन, तो रेडिश इन कलर।
है ना। और अगर हाइड्रेशन हो जाती है तो वो ज्यादा हो जाता है, हाइड्रेट हो जाए तो वो येलो हो जाती है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और रिएक्शन विद अगर हाइड्रोजन हो जाएगा तो वो हाइड्रेट्स फॉर्म हो जाएंगे। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ लैटराइट सॉइल, नाउ दिस सॉइल is originating from the word letter. The word letter, if you see, means brick. मतलब ये जो सॉइल है ये ब्रिक जैसी लगती है। वन करेक्टर ऑफ दिस सॉइल इज दैट इट लुक्स लाइक ब्रिक। अगर इफ यू मस्ट हैव गॉन टू गोवा and seen the churches there, most of them are red in color. So why are they red in color? Because the soil there is red. So the same soil is as hard as a brick. तो क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है तो उसी को काट के सीधी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए ब्रिक्स खरीदने की जरूरत नहीं होती वहां पर। ठीक है। तो इसीलिए लीचिंग का एक प्रोसेस जो है उसमें बहुत इन्वॉल्व होता है। तो लीचिंग, व्हाट इज लीचिंग? तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीचिंग को हमें समझना होगा कि कुछ केमिकल्स जो हैं ऊपर की लेयर से नीचे को चले जाते हैं। और क्या क्या होता है, कह रहा है ह्यूमस कंटेंट जो है वो भी रिमूव हो जाता है। एक और उसने करेक्टर बताया कि ह्यूमस कंटेंट रिमूव हो जाता है इस सॉइल में। और सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब जो लेटराइट सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, तभी नॉट सुटेबल है। तो इसके अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ता है? एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो हमारे को इसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है। तो जब हम इसके अंदर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं तब जाके ये सॉइल यूजेबल हो जाती है। ठीक है। तो लेटराइट, कह रेड लेटराइट डेवलप्स इन एरियाज ऑफ तमिलनाडु। तो लेटराइट सॉइल के भी उसने एक करेक्टर बताया कि एक रेड लेटराइट भी होती है, एक लेटराइट है और एक रेड लेटराइट है। और लेटराइट सॉइल इज वाइडली यूज फॉर, इज कट एज ब्रिक्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि ये हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो पाती है। और हम क्या देखते हैं, तो अभी तक हमने रेड, येलो एंड लेटराइट सॉइल को स्टडी किया, है ना। तो रेड सॉइल में हमने देखा क्रिस्टल इग्नियस रॉक से बनी थी, और येलो सॉइल हाइड्रेशन से बनी थी, और लेटराइट सॉइल में लीचिंग हुई थी। और लीचिंग में मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ चले गए थे। और लीचिंग का जो प्रोसेस है, यहाँ जहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस लीचिंग होती है, यहाँ पर आप नोट करिए, ये देखिए, मार्क कर लीजिए, इंटेंस लीचिंग। इंटेंस लीचिंग मतलब बहुत ज्यादा लीचिंग होती है। तो लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच मिनरल्स मूव टू द लोअर लेयर्स। तो अपर लेयर में से मटेरियल नीचे चला जाता है। नेक्स्ट सॉइल वी आर गोइंग टू स्टडी इज द एरिड सॉइल। यस। सो व्हाट डू वी सी? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल अगर हम देखें तो व्हाट डू वी फाइंड दैट एरिड सॉइल, सो एरिड सॉइल इज रेड टू ब्राउन इन कलर। तो एक करेक्टर हमारे को एरिड सॉइल का दिखा कि वो रेड टू ब्राउन इन कलर है। सेलाइन नेचर है, मतलब उसमें नमक बहुत ज्यादा है। सेकंड पॉइंट। थर्ड, उसमें क्या है, सो हाई दैट कॉमन सेल कैन बी ऑब्टेन। तो अगर उसके अंदर जो पानी है उसको, वहां पर जो पानी कलेक्टेड है उसको अगर हम गर्म करें या उसको इवेपोरेट कर दें किसी भी तरीके से, तो जो नमक है उसको निकाला जा सकता है, इतना तेज वहां पर इवेपोरेशन होती है। ठीक है। हाई टेम्परेचर है वहां पर, ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेलरेटेड इवेपोरेशन है, एंड लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस है। तो ये भी उसके करेक्टर हैं, किसके? एरिड सॉइल के। देन फर्दर व्हाट ही सेज के इसके अंदर कंकर बन जाते हैं। अब कंकर क्या है? ये कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम यहाँ पर जमा हो जाती है जिससे कंकर बनते हैं। ठीक है। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन restricts infiltration of water, such as when irrigation is made available, the soil is readily available for sustainable plant growth। तो कह रहे हैं पानी की यहाँ बहुत कमी है, और अगर पानी की कमी यहाँ पर कम हो जाए तब प्लांट ग्रोथ अच्छी हो सकती है।
right? So with this we come to the saline soil. So yes, नाउ सेलाइन सॉइल को अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं उर्वरा, और इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए सॉरी ऊसर कहा जाता है। उर्वरा तो फर्टाइल सॉइल को कहते हैं, तो सेलाइन सॉइल इज कॉल्ड एज ऊसर, राइट? एंड व्हाट डू वी फाइंड दैट यहाँ पर वाटर लॉगिंग एंड स्वैम्पी एरियाज पाए जाते हैं। कई सारे एरियाज में वाटर लॉगिंग होती है और स्वैम्पी एरियाज पाए जाते हैं। और हम क्या देखते हैं कि सेलाइन सॉइल में इनफर्टाइल होता है। अगर आप नोटिस करें, मैं केमिकल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ मेन वर्ड्स पे। जैसे यहाँ पर हमने उसरा बोला, इधर इनफर्टाइल बोला, और हमने क्या वर्ड बोला, यहाँ पर पुअर ड्रेनेज भी होती है कई बार। पुअर ड्रेनेज मतलब पानी अच्छी तरीके से निकल नहीं पाता। ठीक है, तो जहां पर पुअर ड्रेनेज होगी वहां पर वाटर लॉगिंग हो जाएगी, पानी जमा हो जाएगा और स्वैम्पी एरियाज बन जाएंगे, है ना? इससे हम क्या देखते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन से अ, हम क्या देखते हैं कि इसको हम फर्टाइल कर सकते हैं अगर हम अच्छी तरीके से पानी डालें। तो पानी से क्या है कि इसके अंदर से मगर एक प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम इरिगेशन ज्यादा कर देते हैं तो उससे एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो क्या होता है कि नीचे से नमक ऊपर उठ के आ सकता है, और अगर नीचे से नमक आ जाएगा तो वो सॉइल को और भी सेलाइन बना देगा। तो इरिगेशन एक तरीके से फायदेमंद भी है और एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ज्यादा इरिगेशन करें तो नीचे से नमक ऊपर आ जाता है। अगर नमक ऊपर आ जाए तो हमें उस ऐसी सॉइल में नमक से उसे बचाने के लिए उसमें जिप्सम को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके अंदर एसिडिक हो गई है, तो उसको बेसिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है उसमें हमारे को क्या ऐड करना पड़ेगा, जिप्सम। तो पंजाब और हरियाणा में इरिगेशन ज्यादा होने से कई सारी सॉइल सेलाइन हो गई हैं, जो डेजर्ट के पास आती जाती होंगी, क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो नमक ऊपर उठ जाता है ना? अब हम देखते हैं पीटी सॉइल। पीटी सॉइल जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, वहां पर वेजिटेशन बहुत होती है। तो ऐसी सॉइल जिसमें वेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, वो जो सॉइल होती है वो काले रंग में जाती है। ठीक है, और ऐसी जो सॉइल होती है, पीट एक टाइप का कोल होता है ना, तो उसी से वर्ड आया है पीटी सॉइल। तो जिस सॉइल में बहुत ज्यादा वेजिटेशन वगैरह होगी, आप देखो हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, वेयर देर इज गुड कवर ऑफ वेजिटेशन, तो ये चीज करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एरिया में काले रंग की सॉइल हो जाएगी। तो पीटी सॉइल जो है उसमें काला रंग जो आ रहा है वो आ रहा है वेजिटेशन की प्रेजेंस से, राइट? अगर हम देखें फॉरेस्ट सॉइल को, अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वहां पर पाई जाती है। इसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं, स्लैश माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है। तो फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आजकल जो माउंटेन्स हैं वो सिर्फ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो माउंटेन्स, सॉरी, जहाँ माउंटेन्स फॉरेस्ट हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट कहीं बचे ही नहीं, सिर्फ माउंटेन्स में बचे हुए हैं। तो उसी, क्योंकि माउंटेन्स में अगर आप ज्यादा फॉरेस्ट काट दोगे तो लैंडस्लाइड वगैरह बहुत बढ़ जाएगी, है ना? तो माउंटेन्स पे तो फॉरेस्ट कुछ बचे हुए हैं। और हम क्या देखते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है वहां पर ये जो सॉइल होती है एसिडिक हो जाती है। और क्योंकि वहां पर बर्फ होती है तो इसके अंदर जो ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पर कुछ वेजिटेशन वैसे ही नहीं हो पाती, तो ह्यूमस बनना बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट वो करा है। इट इज एविडेंट दैट द foregoing discussion that soil, their texture, their quality and nature are vital for germination of plant and vegetation including crops। तो कैसी सॉइल है उसके हिसाब से क्रॉप्स जो उसके ऊपर उगेंगे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना? और हम क्या देखते हैं, सॉइल्स आर अ लिविंग सिस्टम। तो जो सॉइल है वो डेड नहीं होती। ये नहीं हो कि पिसा हुआ पत्थर है, वो एक लिविंग सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सॉइल को फर्टाइल करते हैं। ठीक है ना? तो विद दिस वी कम टू सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन को अगर हम देखें तो
Soil degradation can be defined as decline in soil fertility. दो एक करेक्टर इसका क्या है कि इसमें सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है. ठीक है. Further, what does it says that soil degradation is main factor responsible for depleting सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. तो सॉइल का डिग्रेडेशन जो है वो सॉइल रिसोर्सेज को खत्म कर देता है और बिल्कुल बचती नहीं है सॉइल. ठीक है. इरोजन जो है वो भी एक इसका पार्ट आता है सॉइल डिग्रेडेशन में. इरोजन क्या है? इसमें क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल कवर इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. तो अपर लेयर ऑफ जो सॉइल है अगर वो रिमूव हो जाती है तो उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है. इरोजन है ना. और उसमें उसने कहा कि क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो सॉइल खराब होती है. तो टोपोग्राफी मतलब टॉप से सॉइल कैसी दिखती है, मतलब उसका स्लोप क्या है. स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल को इरोड करने में. ठीक है. अगर प्लेन होगी तो इरोजन या कुछ भी नहीं होगा, खराबी नहीं होगी जमीन. हम अगर अगर स्लोप होगा तो स्लोप पे सॉइल मैच्योर नहीं हो पाएगी. है ना. और उसके बाद विंड वेलोसिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो अगर हवा तेज चलेगी तो वो भी सॉइल इरोजन कॉज कर सकती है ना. और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कितनी हो रही है वो भी सॉइल के ऊपर असर कर सकती है. राइट. सो विद दिस वी मूव फर्दर. तो सॉइल में अगर जितना एडिशन हो रहा है उतना रिमूवल हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. मगर इरोजन तब हो जाता है जब रिमूवल ज्यादा हो रहा है और एडिशन कम हो रहा है. ठीक है. तो ये करेक्ट हमें समझ में आया. वो कह रहा है समटाइम्स सच अ बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय नेचर, नेचुरल एंड ह्यूमन फोर्स फैक्टर्स. तो अगर नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स ये दो जो फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं इसको, लीडिंग टू ग्रेटर रिमूवल ऑफ सॉइल, ज्यादा रिमूवल होना शुरू हो गया. ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो ह्यूमन एक्टिविटीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं सॉइल इरोजन में. क्यों? बिकॉज मैन जो है उसके जो एक्शंस हैं वो जमीन को और भी खराब कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो पेड़ काट देता है ना. एज ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर लैंड ऑल्सो इंक्रीजेस. तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उतनी डिमांड फॉर लैंड बढ़ती है. एंड एज द डिमांड फॉर लैंड इंक्रीजेस पीपल स्टार्ट कटिंग वेजिटेशन. क्योंकि लोग सेटलमेंट चाहते हैं, कल्टीवेशन चाहते हैं, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल करते हैं. तो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज जो यहाँ पर हो रही हैं, तीनों एक्टिविटीज आपके सामने हैं, ये तीनों एक्टिविटीज जो हैं वो भी सॉइल को इरोड करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं. विंड एंड वाटर आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिमूव सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट. विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज. तो उसने कहा एक तो विंड इरोजन है और दूसरा क्या है, वाटर इरोजन है. तो विंड इरोजन कहाँ पर हो रहा है? एरिड और सेमी एरिड एरियाज में. इन रीजन्स विद हैवी रेनफॉल एंड स्टीप सॉइल, सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट. वाटर इरोजन इज more serious and occurs extensively in different parts of India, taking place mainly in form of sheet and gully erosion. तो अब वाटर इरोजन के लिए अब हमारे पास बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आ गया कि what are the landforms created because of या what are the features created by वाटर इरोजन. तो एक तो शीट इरोजन होता है और एक गली इरोजन होता है. शीट इरोजन टेक्स प्लेस on heavy lands after heavy showers and soil removed is not easily noticeable. शीट इरोजन में एक पतली सी लेयर सॉइल के ऊपर की उतर जाती है और वो बहुत नोटिसेबल नहीं होती. बट इट इज harmful since it removes the finer and more
फर्टाइल सॉइल। तो करेक्टर क्या है कि ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल को रिमूव कर देती है। अगर आप देखो, आप सॉइल को अर्थ की स्किन की तरह मानो। क्या मानो? सॉइल को अर्थ की स्किन की तरह मानो। और अगर सॉइल जो है वो अर्थ की स्किन है, तो आप ये सोचो कि अगर किसी भी चीज की स्किन पे, अगर हमारी स्किन पे रैशेस हो जाए या स्किन रगड़ खा जाए और एक चोट उसमें लग जाए और छोटे छोटे सा खून बह जाए हल्का सा, तब भी हमें कितना दर्द होता है, क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। उसी तरीके से जो सॉइल है वो, उसकी पतली सी जो फर्टाइल लेयर है सबसे ऊपर वाली, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए। और जब वो पतली सी लेयर हट जाती है, तो जो हुआ वो हुआ शीट इरोजन। उस जगह पे इतनी जल्दी आपको पता भी नहीं लगेगा कि शीट इरोजन हुआ, कुछ दिनों बाद पता लगेगा, मगर वहां की फर्टिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। गली इरोजन में क्या होता है? अब नेक्स्ट इरोजन का वर्ड है गली इरोजन। और हम क्या देखते हैं इस इरोजन में? वो कह रहे हैं गली इरोजन इज कॉमन इन स्टीप स्लोप्स। तो गली इरोजन कहाँ हो रहा है? स्टीप स्लोप्स में हो रहा है। गली वाइडन्स with the rainfall cutting the agricultural land into small fragments, making them unfit for cultivation. A region with large number of deep gullies and ravines is called as badland. Ravines are widespread in Chambal Basin. They are also found in Tamil Nadu and West Bengal. The country is losing 8,000 hectares of area because of ravines every year. So, till Chambal Basin, it will be right for us to mark, because we will be able to understand here what is गली इरोजन। गली इरोजन में क्या हो रहा है कि उसमें बहुत गहरी कटिंग हो रही है, ठीक है, और बहुत गहरी कटिंग हो रही है, और हम क्या देखते हैं कि उस कटिंग से जमीन खराब होती जा रही है, और उस जगह पे क्या हो गए हैं? बैडलैंड्स बन गए हैं। क्या बना है? बैडलैंड। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप भी हाईलाइट करिए वर्ड बैडलैंड और चंबल, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि अगर एक एरिया में बहुत ज्यादा गली इरोजन हो जाए तो व्हाट टाइप ऑफ लैंड विल रिमेन। तो आप कहोगे इट विल बी बैडलैंड्स। फिर वो पूछेंगे कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ बैडलैंड्स, तो आप आंसर देंगे कि चंबल बेसिन इज एन एग्जांपल ऑफ बैडलैंड, राइट? सो विद दिस, soil erosion is a serious problem in Indian agriculture. Its negative effect can be seen in other spheres. The eroded materials are carried down to rivers and lower down their carrying capacity, causing frequent floods and damaging the agricultural land. तो एक तो क्या है कि फ्लड्स हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मट्टी इतनी ज्यादा ठीक कर देती है नदी के पानी को कि वहां पर क्या हो जाता है, वो एक तो जहां जहां वो उसे जाना होता है जिस चैनल में, उसमें वो फ्लड को क्रिएट कर देती है, ठीक है। और क्या करती है? इरोडेड मटेरियल कैरिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और क्या होता है उसका असर? कि वो पूरी की पूरी जो एरिया है वहाँ की सॉइल जो है वो एक तो ब्लॉक हो जाती है रिवर, और एग्रीकल्चरल लैंड में से, क्योंकि वो इरोड हुई है, तो एग्रीकल्चरल लैंड इनफर्टाइल हो जाता है। अब एक और वर्ड, जब हम सॉइल डिग्रेडेशन में अपने पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको स्क्रॉल करके दिखाया था कि देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल इरोजन, और जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर आना चाहिए एज अ मेन टॉपिक, वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा एजेंट है सॉइल इरोजन को कॉज करने के लिए। तो अगर पेड़ कट जाते हैं, तो पेड़ जो है वो ही बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि वो सारे एरिया में किसको प्रोटेक्ट करते हैं? वो प्रोटेक्ट करते हैं सारे फॉरेस्ट को। और वो कह रहा है फॉरेस्ट हैव बीन डेनुडेटेड प्रैक्टिकली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया
but their effect on soil erosion are more in hilly parts of the country. तो हिली एरियाज में ज्यादा उसका असर पाया जाता है। किसका? फॉरेस्ट के रिमूवल से। क्यों? क्योंकि अगर हिली एरियाज में फॉरेस्ट रिमूव हो जाते हैं तो असर क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन हो जाती है ना। फेयरली लार्ज एरिया ऑफ एरेबल लैंड इन इरिगेटेड जोन्स ऑफ इंडिया इज बिकमिंग सेलाइन। अब एक और प्रॉब्लम उसने बात करी, सॉइल इरोजन की जगह यहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं हो रहा, मगर उसने कहा ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है सॉइल का बेकार बनने में, डिग्रेड होने में, क्योंकि मेन हेडिंग थी डिग्रेडेशन। तो वो कह रहा है जमीन जो है उसमें नमक हो गया। तो नमक कैसे हो जाता है? अगर एक एरिया में नीचे से नमक ऊपर आता है तो वो भी सॉइल को खराब कर देता है, मतलब इवेपोरेशन ज्यादा हो तो वो भी सॉइल को खराब कर देती है ना। फिर वो कहता है एक और फैक्टर है जो सॉइल को खराब करता है। फिर वो जिस फैक्टर की बात करता है वो कहता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल्स हैं, और केमिकल्स के ज़्यादा होने से सॉइल जो होती है वो अपना एग्जैक्ट नेचर ही खराब कर पा जाती है। तो आज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। टू मच ऑफ फर्टिलाइजर्स के यूज से सॉइल अपनी ओरिजिनल करेक्टर्स भूल जाती है। ठीक है। और ये कहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा होती है जहाँ पर केमिकल्स की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको वो समझा रहा है कि ये ज्यादातर वहां पर होती है जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन वहां पर आता है जहाँ पर सॉइल के अंदर पानी अच्छा अमाउंट में होता है ना। वो कह रहा है आज every year India loses millions of tons of soil and its nutrients to the agents of degradation which adversely affect our national productivity। तो वो कह रहा है, यहाँ उसने एक रीजन दिया कि सॉइल इरोजन बहुत बुरी चीज है। और अब जब वो बहुत बुरी चीज है तो ये पैराग्राफ को आप देखिए तो ये बुक का एक कनेक्टिंग पैराग्राफ है। ये कनेक्टिंग पैराग्राफ कैसे है? क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है आगे के टॉपिक से, और आगे का टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए उसने एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दिया है कि देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से बचने के लिए हमारे को सॉइल को कंजर्व करना होगा, और सॉइल को कंजर्व करने का जो तरीका है वो आपका आएगा इस सॉइल कंजर्वेशन में। नाउ लेट अस टेक अप द हेडिंग ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। If soil erosion and exhaustion are caused by humans, by corollary they can also prevent be by humans। तो कह रहा है अगर आदमी ने उसे कॉज किया तो आदमी उसे रोक भी सकता है। Nature has its own laws for maintaining balance. Nature offers enough opportunities for humans to develop their economy without disturbing the ecological balance। तो कह रहा है नेचर ने आपको बहुत सारे तरीके दिए हैं कि आप बिना खराब करे भी अपनी एनवायरनमेंट को चला सकते हो। Soil conservation is a methodology to maintain soil fertility, prevent soil erosion and exhaustion, and improve the degraded condition of soil। तो यहां से मार्क कर लेते हैं, सॉइल कंजर्वेशन इज अ मेथोडोलॉजी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। पहले तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करता है, सॉइल एग्जॉशन से भी बचाता है ना, एंड इम्प्रूव्स द डिग्रेडेड कंडीशंस ऑफ द सॉइल। मतलब एक एरिया जहाँ पर सॉइल खराब हो चुकी है उसको भी हेल्प करने में कोशिश करता है सॉइल कंजर्वेशन, क्योंकि आप खराब जगह को भी हेल्प करोगे, इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। सॉइल इरोजन इज essentially aggravated by faulty practices। First step in any rational solution is to check open cultivable land on to check open cultivable land on हाँ
स्लोप फॉर फार्मिंग। तो वो कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन से स्लोप्स को यूज कर रहे हो। अगर स्लोप बहुत ज्यादा एंगल में है तो उस पे किस तरीके से एग्रीकल्चर करनी है उसका ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप पे आप एग्रीकल्चर करोगे, बारिश होगी और वो सॉइल इरोजन कॉज करेगी। तो ज्यादा स्लोप होता है तो कहते हैं आप कौन सी फार्मिंग कर रहे हो, आप सीढ़ीदार फार्मिंग करो। आपने नोटिस किया होगा कि वेन एवर यू गो टू अ माउंटेन एंड इफ यू फाइंड एग्रीकल्चर बीइंग डन, तो आप देखेंगे वो सीढ़ी सीढ़ी बना के एग्रीकल्चर कर रहे हैं और एक एक सीढ़ी पे एग्रीकल्चर हुई, तो उनको जो जगह जमीन पे वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो सीधी मिल रही है। तो वो सीधी नेचर ने नहीं बनाई है, आदमी ने खुद उसे सीधा किया है। ठीक है। If at all land is to be used for agriculture, terraces should be carefully made. तो जो टेरेसेस हैं उन्हीं को सीढ़ी वर्ड बोला मैंने आपको। सिंपल लैंग्वेज में यू कैन राइट डाउन कि जो वर्ड टेरेसेस हैं वो सीढ़ियों को बनाने को टेरेसेस कहते हैं। ओवर ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव affected the natural cover of land, giving rise to extensive erosion। तो ये भी हमने हाईलाइट कर दिया। राइट। तो इसमें क्या है कि एक तो हुआ ओवर ग्रेजिंग जिसको हमें रोकना है, एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको भी हमें रोकना पड़ेगा। ये दो पॉइंट हैं जिनको हमें रोकना है। ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है कि जो जानवर होते हैं वो बहुत ज्यादा जो लेयर ऑफ सॉइल होती है उसे खा जाते हैं। घास जो होती है उसे खींच खींच के निकाल लेते हैं। अब जब सॉइल में घास को अपने रूट से भी निकाल दिया तो, और ये कॉज करने में शीप सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इससे जो है करेक्टर ऑफ सॉइल जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। राइट। तो फर्दर हम क्या देखते हैं, इट शुड बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय एजुकेटिंग विलेजेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। और क्या मेथड्स हैं कि काउंटर बंडिंग, इसमें हम मुंडेर बना देते हैं कोने में, तो विच इज कॉल्ड एज काउंटर बंडिंग। फर्दर वो कह रहा है काउंटर टेरेसिंग। अगर ऊंची नीची फील्ड है तब आप उसमें स्लोप के हिसाब से आप उसके अंदर वो बना सकते हैं, स्लोप्स के हिसाब से सीढ़ियां तक वो। टेरेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ द लैंड इज कॉल्ड एज काउंटर ट्रेसिंग। रेगुलेटेड फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट को एकदम कट ना जाए, इसको बड़े ध्यान से देखना है कि फॉरेस्ट का बैलेंस मेंटेन रहे, है ना। फिर वो कह रहा है कंट्रोल्ड ओवरग्रेजिंग। तो ओवरग्रेजिंग को भी हमें कंट्रोल करके करना है कि वो ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। क्रॉप कवरिंग, तो जो क्रॉपिंग है उसको भी हमारे को बहुत ध्यान से देखना है कि क्या क्रॉप्स उग रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अलग अलग क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ना। फिर उसके बाद मिक्स फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन आर। तो मिक्स क्रॉपिंग हमें अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग टाइम पे कटेंगे, तो इसलिए वो अच्छी मान जाती है मिक्स फार्मिंग को, है ना। अब इससे हम क्या देखते हैं, एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट गली इरोजन एंड कंट्रोल ऑफ देयर फॉर्मेशन। फिंगर गलीज कैन बी एलिमिनेटेड। जब गलीज छोटी छोटी हो तभी उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए, उनको बनने नहीं देना चाहिए। In bigger gullies, erosive velocity of water may be reduced by constructing check dams। बहुत बड़ी बड़ी अगर गलीज बनी है तो उनके अंदर रोकने के लिए हम एक चेक डैम बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है। स्पेशल अटेंशन शुड बी मेड टू कंट्रोल हेड वाटर इरोजन। नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हेड वाटर कहते हैं, तो वहां पर के इरोजन को रोकना भी एक इम्पोर्टेंट तरीका है। ठीक है। और उसके लिए दिस कैन बी डन बाय गली प्लगिंग, टेरेसिंग एंड बाय प्लांटिंग कवर वेजिटेशन। तो ये तीन मेथड्स हैं जिससे हम हेडवर्ड इरोजन को
स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। इन एरिड एरियाज, अब एरिड एरियाज में हमें क्या करना है, ये एक हेडिंग बना दी उसने कि एरिड एरियाज में हमें क्या करना है। और हम देखते हैं कि इन एरिड एरियाज efforts should be made to protect cultivated land from encroachment by sand dunes through shelter belt and, तो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उससे भी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प किया जा सकता है। एक पूरा का पूरा एरिया में आप खूब सारे शेल्टर बेल्ट लगा दीजिए, मतलब कई सारी ट्रीज उगा दीजिए लेयर बाय लेयर, तो उससे भी क्या होगा कि एरिया जो है वो कल्टीवेशन। और फिर वो कह रहा है एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन मेड टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून इन वेस्टर्न राजस्थान। तो राजस्थान में हमने क्या कोशिश की है कि सैंड ड्यून्स की मूवमेंट रुक जाए, क्योंकि अगर सैंड ड्यून्स की मूवमेंट रुक जाएगी तो जो ग्रेजिंग लैंड है उसके ऊपर सैंड कवर नहीं करेगी और आगे सैंड आगे बढ़ के डेजर्टिफाई नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश की है कि फर्दर हम क्या देखते हैं, plans are based on climatic condition, configuration of land, social behavior. Even these plans are fragmented in nature. Integrated land use planning therefore seems to be the best technique. तो कह रहा है एक बड़े लेवल पे इंटीग्रेट करके अगर हम लैंड को साथ साथ यूज कर सकें तो बेस्ट फैक्टर हो पाएगा, मतलब कहाँ पर क्या हो रहा है, किस जगह पर हम क्या कर रहे हैं, उस सबका एक प्लानिंग करके कर सकें। लैंड यूज मैप शुड बी प्रिपेयर्ड, को कहाँ पर कौन सा लैंड किस तरीके से यूजर है इसका पहले मैप बनाया जाए। मैप से फायदा ये होगा कि हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से उसे प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का लैंड यूज है उसी तरीके के मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग कंजर्वेशन ऑफ लैंड विल rest on the people who operate and receive benefit। तो अल्टीमेटली इट इज में जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना सॉइल कंजर्वेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। विद दिस वी कंक्लूड द चैप्टर। थैंक यू।